Assalamu alaikum dear students, hope you are fine at your places. Bismillahirrahmanirrahim. Today our discussion topic is unit number 1, operation on set, exercise 1.3 plus review exercise 1. Solution of exercise 1.3, verify the cumulative law of union and intersection of the following set through Venn diagram. What is Venn diagram? A pictorial representation of different sets is known as Venn diagram. A Venn diagram has two parts. First part is a universal set is represented in the form of rectangular, and second part is its subset represented in the form of closed figure inside the triangle. Question number 1, A is equal to 3, 5, 7, 9, 11, 13 and B is equal to 5, 9, 13, 17, 21 and 25. First of all, find out the cumulative law of union. A union B is equal to B union A. First of all, solve the left hand side. Left hand side is equal to A union B. A union B means in sequence all the numbers are added. A union B is equal to 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17 and 21 and 25. And B union A is equal to 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 21 and 25. Now draw the Venn diagram. There are two parts of Venn diagram. First is rectangular parts. Rectangular part contains universal sets, and there are two sets A and B. Two closed figures are drawn. If in A union B all the elements of A and B are included and common elements taken once, आपने ऐसे elements सारे elements को diagrams के अंदर लिख देना है और आपने जो कॉमन एलिमेंट है उनको वन टाइम लिख देना है. तो आपने शेड एरिया कौन सा करना है? ए यूनियन बी में टोटल दोनों सर्कल्स को आपने शेड कर देना है हॉरिजॉन्टल लाइन से. बी यूनियन ए की भी डायग्राम सेम ऐसे ही ड्रा होगी, सो डैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए. Now find out the cumulative law of intersection. Its law is A intersection B is equal to B intersection A. Intersection mean only common element on the both set are included. आपने ऐसे elements लिखने जो दोनों sets के अंदर common हो. For example, A intersection B. Find out the answer of A intersection B is equal to 5, 9, 13. A जो A में भी मौजूद है और B में भी मौजूद है वो कौन कौन से element है? 5, 9, 13. And B intersection A is equal to also answer is 5, 9, 13. Left hand side is equal to right hand side. Now draw the Venn diagram. In Venn diagram A intersection B common element of A and B are taken. आपने को A के भी elements लिख दिए, B के भी लिख दिए. जो common element है उस एरिया को आपने horizontal line से शेड कर देना है, A intersection B का और B intersection A का. Question number 2, copy the following figure and shed according to the operation. अब आपके पास different operations given है. Part 1 A union B. A union B means in sequence all the numbers are added. In A union B all the elements of A and B are taken and common element should be taken once. आपने common element को क्या लिख देना है? वन टाइम लिख देना है. और शेड कौन सा एरिया कर देना है? A सर्कल भी शेड कर देना है और B सर्कल भी शेड कर देना है. नेक्स्ट आपके पास फिगर है U यूनियन A. U means universal set and union A. अब इसमें आपने क्या करना है? इन फाइंड आउट द यूनियन. यूनियन मीन इन सीक्वेंस ऑल द नंबर्स आर एडेड. आपने सारे नंबर्स लिख दिए. ए इन यू यूनियन ए ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यू एंड ए टेकन, एंड व्हेन वी टेक एलिमेंट ऑफ यू एंड एलिमेंट ऑफ ए विल बी टेकन आल्सो. आपने ए के भी लिख दिए और यू के भी तमाम एलिमेंट्स लिख दिए, तो दैट इज नोन एज यूनियन ऑफ सेट. अब आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है तो आपने शेड करना है. पहले आपने रेक्टेंगुलर फॉर्म में आपके यू रिप्रेजेंट होगा और क्लोज फिगर में सर्कुलर फॉर्म में आपके पास ए रिप्रेजेंट होगा. अब शेड कौन सा एरिया करना है? यू का भी करना है और ए का. होल आपके पास जो डायग्राम बनी हुई है उसको शेड कर देना है हॉरिजॉन्टल लाइन से. नेक्स्ट है आपके पास A यूनियन A इज इक्वल टू A. अब A यूनियन A मीन्स A हैज़ बीन शेडेड. अब ओनली आपने कौन सा वैल्यू शेड करनी है? A. अब नेक्स्ट क्या? A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B. अब आपने कौन सा शेड करना है? सिर्फ B की जो डायग्राम है, जो A के अंदर डायग्राम एक दो सर्कल बने हुए हैं. एक A का सर्कल बड़ा सर्कल A का है और स्मॉल सर्कल B का है, तो आपने स्मॉल सर्कल को शेड कर देना है. नेक्स्ट है आपके पास U इंटरसेक्शन A. अब U का इंटरसेक्शन A लिया तो इंटरसेक्शन मीन कॉमन एलिमेंट, तो कॉमन एलिमेंट सिर्फ A के होंगे. सिर्फ A को वर्टिकल लाइन से आपने शेड कर देना है. A इंटरसेक्शन A. अब A इंटरसेक्शन A में लेकिन कॉमन एलिमेंट सिर्फ A के ही आएंगे, तो डैट इज अब आपने किसको शेड करना है? सिर्फ A को ही शेड करना है. क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द गिवन सेट वेरीफाई द फॉलोइंग थ्रू वेन डायग्राम. पार्ट 1 इज एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, associative law of intersection of set, distributive
law of union our intersection of set, distributive law of intersection our union of set. Part A is equal to 2 4 6 8 10 and 12, B is equal to 1 3 5 7 9 11, and C is equal to 3 6 9 12 and 15. B part is equal to x such that x belongs to integer 8 less than and ग्रेटर देन 25. अब आपने ये आपके पास डिफरेंट ए एंड बी के एलिमेंट्स गिवन है. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट दी associative law of union. Associative law of union is equal to A union bracket B union C is equal to A union B bracket close union C. First of all solve the left hand side with part 1. A is equal to 2 4 6 8 10 12, B is equal to 1 3 5 7 9 11, and C is equal to 3 6 9 12 and 15. फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी. अब सबसे पहले आपने किसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या गिवन है, बी यूनियन सी फाइंड आउट किया. पहले आपने ए की वैल्यू राइट की, देन यूनियन ब्रैकेट लगाई, बी की वैल्यू राइट की, देन यूनियन सी की वैल्यू राइट की, ब्रैकेट क्लोज कर दिया. ब्रैकेट बी यूनियन ब्रैकेट के अंदर कौन सी वैल्यू गिवन है, बी यूनियन सी फाइंड किया तो आपके पास आंसर आ गया 1 3 5 6 7 9 11 12 एंड 15. अब इसके साथ आपने ए के साथ आपने इसका यूनियन ले लेना 2 4 6 8 10 एंड 12. अब यूनियन लेंगे, यूनियन मीनिंग सीक्वेंस ऑल दी नंबर्स आर एडिड. आपके पास आंसर आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 15. लेफ्ट हैंड साइड आपकी कंप्लीट होगी. नाउ सॉल्व द राइट हैंड साइड. ब्रैकेट ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज यूनियन सी. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट दी ए सेट इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 12, यूनियन बी सेट इज इक्वल टू 1 3 5 7 9 11, ब्रैकेट क्लोज यूनियन सी सेट इज इक्वल टू 3 6 9 12 एंड 15. फाइंड आउट द यूनियन ऑफ ए यूनियन बी. आंसर इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एंड यूनियन सी इज इक्वल टू 3 6 9 12 एंड 15. इन दोनों का यूनियन लिया तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 15. सो दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. ए यूनियन बी ई यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी. नेक्स्ट इज एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट. Its law is A intersection bracket B intersection C is equal to A intersection B bracket close intersection C. First of all solve the left hand side. Left hand side is equal to A intersection bracket B intersection C. First of all write the set A is equal to 2 4 6 8 10 12 intersection bracket. Write the B set is equal to 1 3 5 7 9 11, intersection C is equal to 3 6 9 12 and 15 bracket close. अब intersection mean only common element on both set. आपने ऐसे elements लिखने हैं जो दोनों set के अंदर common हो. अब बी एंड सी के अंदर जस्ट कॉमन क्या है, एलिमेंट 3 है, आपने 3 लिख दिया. अब ए के साथ इसका इंटरसेक्शन ले लें. इंटरसेक्शन मीन कॉमन एलिमेंट, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो आपके पास क्या आ गया, एम्प्टी सेट. अब आपकी लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट होगी. नाउ सॉल्व द राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी एंड ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन सी. अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है. ब्रैकेट के अंदर क्या गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द वैल्यू ऑफ ए एंड देन राइट द वैल्यू ऑफ बी, ब्रैकेट क्लोज एंड देन राइट द वैल्यू ऑफ सी. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द ए इंटरसेक्शन बी. ए इंटरसेक्शन बी में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं, आपने एम्प्टी सेट लिख दिया. सी सेट उसी तरह आ गया 3 6 9 12 एंड 15. अब इन दोनों में आपके पास कोई कॉमन एलिमेंट नजर आ रहा है नहीं, तो सो दैट आवर आंसर इज एम्प्टी सेट. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. हमारा लॉ एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन प्रूव्ड हो गया. ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी एंड इंटरसेक्शन सी. Part 3 is equal to distributive law of union our intersection of set. Its statement is A union B intersection C is equal to A union B intersection A union C. First of all solve the left hand side. Left hand side is equal to A union bracket B intersection C. अब first of all आपने क्या करना है, A की वैल्यू राइट करनी है 2 4 6 8 10 12, यूनियन ब्रैकेट B वैल्यू लिखनी है 1 3 5 7 9 11, इंटरसेक्शन सी वैल्यू लिखनी है 3 6 9 12 एंड 15. अब बी इंटरसेक्शन सी लेना है. बी और सी के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, 3 एंड 9. अब 3 एंड 9 आपके पास आंसर आ गया बी इंटरसेक्शन सी का. देन फाइंड आउट कर लेना है यूनियन ए के साथ 2 4 6 8 10 12, यूनियन 3 एंड 9. अब यूनियन मीन्स इन सीक्वेंस ऑल द नंबर्स आर एडिड 2 3 4 6 8 9 10 एंड 12. आपकी लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट होगी. नाउ सॉल्व द राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में दो ब्रैकेट्स गिवन है, दोनों ब्रैकेट्स को अलग-अलग सॉल्व करना है. फर्स्ट ब्रैकेट आपके पास क्या गिवन है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी. अब आपने पहले ए की वैल्यू लिख दी
ए की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है 2 4 6 8 10 12 यूनियन बी की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है 1 3 5 7 9 11 ब्रैकेट क्लोज, फिर इंटरसेक्शन, फिर ब्रैकेट स्टार्ट 2 4 6 8 10 12 ए की वैल्यू लिख दी यूनियन सी की वैल्यू 3 6 9 12 and 15. First of all find the A union B, then find the A union C. A union B is equal to union mean in sequence all the numbers are added. तरतीब देके सारे नंबर्स को लिख देना है। तो आपके पास कौन से नंबर आ गए यूनियन बी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब A यूनियन C का आंसर आपके पास क्या आ गया 2 3 4 6 8 9 10 12 एंड 15। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ए यूनियन बी और ए यूनियन सी का आपने इंटरसेक्शन ले लेना। इंटरसेक्शन मीन ओनली कॉमन एलिमेंट ऑन बोथ साइड। ए यूनियन बी के अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद हैं और ए यूनियन सी के अंदर जो एलिमेंट्स कॉमन मौजूद हैं वो जस्ट आपने लिख देने हैं। कॉमन एलिमेंट आपके पास दोनों सेट्स के अंदर क्या है 2 3 4 6 8 9 10 एंड 12। our left hand side is equal to right hand side. A union B intersection C is equal to A union B intersection A union C. Next law is distributive law of intersection over union. A intersection bracket B union C is equal to A intersection B union A intersection C bracket close. First of all solve the left hand side. Our left hand side is A intersection B union C. First of all find out the brackets. Brackets के अंदर आपके पास क्या given है B union C आपने find out पहले A की वैल्यू लिखी, then brackets B की लिखी, फिर union सी की वैल्यू लिख के ब्रैकेट क्लोज कर दी, बी यूनियन सी फाइंड किया तो बी यूनियन सी का आंसर आ गया आपके पास 1 3 5 6 7 9 11 12 एंड 15। देन इंटरसेक्शन ए के साथ ले लिया 2 4 6 8 10 एंड 12। इंटरसेक्शन 1 3 5 6 7 9 11 12 एंड 15। इंटरसेक्शन मीन कॉमन एलिमेंट। अब दोनों सेट्स के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है वो 6 एंड 12 है। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट क्लोज यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब दोनों ब्रैकेट्स को आपने पहले सॉल्व करना है। ब्रैकेट पहली ब्रैकेट के अंदर आपके पास ए इंटरसेक्शन बी है तो पहले ए की वैल्यू लिखी, देन इंटरसेक्शन बी की वैल्यू लिखी, ब्रैकेट क्लोज यूनियन, फिर ब्रैकेट लगाई, ए की वैल्यू पहले लिखी, देन इंटरसेक्शन सी की वैल्यू लिखी। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड दी ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी के अंदर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो दैट इज आपके पास कौन सा सेट आ जाएगा एम्प्टी। फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, और ए के अंदर और सी के अंदर कौन सा कॉमन एलिमेंट है 6 एंड 12। आपने 6 एंड 12 लिख लिया। एम्प्टी सेट और 6 एंड 12 का आपने यूनियन लिया तो आपके पास यूनियन मीनिंग सीक्वेंस ऑल दी नंबर्स आर रेडी। अब आपके पास ऐसे ही सारे नंबर्स लिख दिए 6 एंड 12 so that our left hand side is equal to right hand side. A intersection bracket B union C is equal to A intersection B union A intersection C. Part B is also same. दिस इज़ योर होमवर्क। इसकी स्टेटमेंट मैं आपको बता देता हूँ टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है इसको। ए इज़ इक्वल टू 8 से बड़े वैल्यू होनी चाहिए और 25 या 25 से लेस देन होनी चाहिए, इक्वल टू और लेस देन होना चाहिए। 8 9 10 11 डैश डैश 25 इंटीजर्स होने चाहिए। बी इंटीजर्स होने चाहिए जो -2 से छोटे हों और 6 से ग्रेटर देन हो। अब आपने -1 0 1 2 3 4 5 सी की वैल्यू भी ऐसे ही लिख लेनी है। 8 7 6 8 से लेस देन होनी चाहिए, सारे नंबर्स आपने इंक्लूड कर लेने हैं। और नेक्स्ट इज कॉपी द फॉलोइंग Venn diagram and shaded according to the operation given below in each diagram. फर्स्ट डायग्राम में आपके पास क्या है A इंटरसेक्शन B। अब A इंटरसेक्शन B जब फाइंड करेंगे तो आपके पास कॉमन एलिमेंट आएंगे। तो देखें आपके पास B की डायग्राम बड़ी है और A का छोटा सर्कल है तो आपने सिर्फ किसको शेड करना है, वर्टिकल लाइन से आपने A को शेड कर दिया। देन यूनियन फाइंड करना है तो एक जो यूनियन C है ना तो आपने सारा C का एरिया आपने शेड कर देना है। हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट शो A इंटरसेक्शन B। अब हॉरिजॉन्टल लाइन आपको किसको शो कर रही है इंटरसेक्शन बी, और वर्टिकल लाइन सेगमेंट कर रही है आपके यूनियन सी को। डबल शेडेड पार्ट एंड सिंगल शेडेड पार्ट इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब नेक्स्ट आपके पास है 3 डायग्राम्स गिवन है ए बी सी की और इसमें आपने ब्रैकेट्स के अंदर आपके पास क्या है ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का टोटल फुल सर्कल्स हैं इनको शेड कर देने और इंटरसेक्शन सब सी लेंगे। जो कॉमन पार्ट बी के साथ सी का आएगा उसको डबल शेड कर देना है वर्टिकल लाइन से। हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट शो द ए यूनियन बी एंड वर्टिकल लाइन शो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। डबल शेडेड पार्ट इज इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। और एंड नेक्स्ट इज
3 डायग्राम्स अगेन गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या फाइंड आउट करना है, ए इंटरसेक्शन बी, तो आपने जस्ट बी को शेड करना है। फिर यूनियन सी करेंगे तो सी का तमाम एरिया आपने वर्टिकल लाइन से शेड कर देना। हॉरिजॉन्टल लाइन शो दी ए इंटरसेक्शन बी, हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी क्या शो करनी है, ए इंटरसेक्शन बी, एंड वर्टिकल लाइंस आपकी क्या कर रही हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। डबल शेडेड इज सिंगल शेडेड पार्ट शो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। रिव्यू एक्सरसाइज 1। 4 options are given against each statement. Encircle the correct one. Part 1. If a small a is not a member of set large A, the symbolically is denoted by A belongs to A such that A not belong to A, C is correct one, and A intersection A. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेट। सेट की डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन की हुई है। सेट ऐसा होता है जो रिपीट नंबर को नहीं करता। अब 1 2 3 इसमें रिपीट नहीं हो रहा नंबर, तो दैट इज सेट। ए बी सी इसमें भी कोई नंबर रिपीट नहीं होता, ये भी सेट है। 2 3 4 ये भी सेट है। अब 1 2 2 2 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, दैट इज नॉट सेट। करेक्ट ऑप्शन इज डी। द नंबर सबसेट ऑफ 0 इज 2। फर्स्ट इज एम्प्टी एंड सेकेंड इज 0। कितने सबसेट ड्रॉ होंगे, ट्रू। A set consisting of all subset of X is called। अब आपके पास अब all subset को क्या कहा जाता है, किसी भी X set के subset, no। universal set, no। consideration of all the set, power set, yes। that is correct answer, and superset। for 3 sets A, B and C, A union B union C equal to आपके पास स्टेटमेंट गिवन है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के साथ इक्वल नहीं आ सकता, इंटरसेक्शन बी के साथ भी इक्वल नहीं आ सकता। तीनों में जिसमें यूनियन होगा वो इसके इक्वल आएगा। ए यूनियन बी यूनियन सी, सी इज़ करेक्ट आंसर, एंड बी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज़ रॉन्ग। फॉर एनी 2 सेट्स ए एंड बी, ए माइनस बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ए माइनस बी कम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, रॉन्ग आंसर। ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, यस करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट, एंड सी and D is also wrong। U is equal to 1 2 3 dot dot 10, A is equal to 2 4 6 10, and B is equal to 1 3 5 dash dash 9। first of all find A minus B, then find U minus A minus B। अब आपके पास क्या इसका इक्वल करेक्ट आंसर क्या होगा, B, ऑप्शन B। पावर सेट, इफ P is equal to empty set A B and AB, how many sets are equal, A and B। 2 सेट्स होंगे, क्योंकि 2 सेट की पावर 2 आपके कितनी होती हैं, 4 सेट्स। यहाँ 4 सेट ड्रा है, तो इट्स मीन डी ऑप्शन इज करेक्ट। इफ एम्प्टी सेट, देन एम्प्टी सेट कम्प्लीमेंट एंड होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। एक एम्प्टी सेट का कम्प्लीमेंट लेंगे, अगेन कम्प्लीमेंट लेंगे, होल कम्प्लीमेंट तो किसके इक्वल आएगा, एम्प्टी सेट की। थैंक यू सो मच। इन द केस ऑफ एनी प्रॉब्लम काइंडली टेल मी ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू।